Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter, history. Last class, half of the class I had done the discussion. By the time I had reached here, the electricity was gone. अचानक से खटक से लाइट चली गई. So I couldn't complete it, but I would be just revising it a little bit. थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. वैसे तो I have completed it, but I had done it through book. So certain important points that you need to remember. एक तो हमने movement in towns which had slowed down. Towns में इतना तेजी से चल रहा था movement. The schools were there, the colleges were there. These places, the movement that was being carried on, it was a very, it was on a very large scale. The Britishers were really into trouble, and it had slowed down for certain reasons. Why? ठीक है? इसमें you have to mention about the khadi and the alternate arrangements. Please mention about this, that alternate arrangements were missing somewhere. ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स दैट वर मिसिंग, इसके वजह से काफी सारा नुकसान हुआ. ये मूवमेंट जो इतनी तेजी से शुरू हुआ था, सडनली इट फिल्स डाउन. अचानक से क्या हुआ, ऑल द पावर इन विच दिस मूवमेंट हैड स्टार्टेड, इट केम डाउन. एंड दिस वॉज अ वेरी सॉरी स्टेट. ऐसा होना नहीं चाहिए था. इट वॉज लाइक अ विनिंग फैक्टर फॉर द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही जीत की चीज हो गई थी. इसके बाद वी हैव अंडरस्टूड अबाउट मूवमेंट इन कंट्री साइड. हियर यू हैव टू टॉक अबाउट द जमींदार्स, तालुकदार्स. Taluka I had already explained. 8 to 10 villages, a group of 8 to 10 villages is the responsibility of some person who is responsible to collecting the revenue and for the other arrangements in that village is called as the talukdar. उसको एक हम तालुकदार कहते हैं. Got it? And these zamindars and talukdars, the way they were carrying on, the way villages were carrying on their movement, they were into trouble. Okay? अब इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हुई? बेगार was stopped. Non-payment of revenue, the villagers said कि they will not pay any taxes, and the other one was Nai and the Dhobiban. The services that they were getting by the washerman and the barber. अरे ये जमींदार है ना, they will not go to the barber shop and get the haircut done. तो इनका जो whatever they have to take the services, जितना भी इनका arrangement है, that would be done by the washerman, by the barber, who will be going to their home and doing the arrangements. ठीक है, making all the arrangements. So this is what. अब नाई एंड धोबीबंद. इसके बाद इसमें आपको एक चीज और देनी है, that is the establishment of औध किसान सभा. अवध को वो औध कह रहे हैं, औध किसान सभा, where the farmers can go and discuss about their problems. Jawaharlal Nehru, under the leadership of Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra, under the leadership of Jawaharlal Nehru
and Baba Ramchandra. Okay. नाउ जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र उनके साथ मिलके ये सारी चीज, ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, दैट वाज वेरी मच नीडेड फॉर द किसान, फॉर द पीजेंट्स, बिकॉज द पीजेंट्स वेयर इनटू रियल ऑल टाइम ट्रबल. ओके, लेकिन क्या हुआ कि एक तो आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देन दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. देन in villages, the movement took a violent turn. काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था विलेजेस में स्पेशली, एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट अप्रूव्ड. यहीं से क्या होता है ना कि कांग्रेस की परेशानियां शुरू हो जाती है. कांग्रेस एंड महात्मा गांधी हैड ऑलरेडी बीन टेलिंग नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, लेकिन क्या हो रहा था, लोगों की सब्र का बांध टूट रहा था. पीपल वेर लूजिंग पेशेंस. व्हेन दे वर लूजिंग पेशेंस, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही थी. मारपीट जहां आया वहां पे क्या हुआ कि महात्मा गांधी यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड, बहुत परेशान हो जाते थे कि जब मना कर दिया है, वायलेंस नहीं करना है, बट स्टिल पीपल आर अकस्टमिंग टू वायलेंस, दिस कैन नॉट बी अप्रूव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, मेनी प्लेसेस में लोकल लीडर्स हैड टोल्ड द पीजेंट्स कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस, गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वुड बी पेड. Gandhi ji said that no taxes would be paid. Okay, and गांधी जी ने कहा कि लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पुअर. जो गरीब लोग हैं उनके बीच में पूरा लैंड जो है वो फिर से बांटा जाएगा. महात्मा गांधी वॉज इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस. हर जगह लोग महात्मा गांधी का नाम लेके काम कर रहे थे. पीपल वेयर टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी एंड कैरिंग ऑन देयर वर्क. तो ये क्या हो रहा था कि ये वायलेंस एंड ऑल दैट वाज हैपनिंग, इट वाज स्पॉइलिंग द नेम ऑफ महात्मा गांधी. This was a really tough time for महात्मा गांधी. यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है. Now what happens is कि ये सारे मूवमेंट, all this movement in cities में देख लिया, movement in village areas we have seen. Now यहाँ से हम कहाँ चलेंगे? Now we are moving towards the tribal area. जंगलों में मूवमेंट कैसे हो रहा था? Movement in tribal areas. इन जंगलों में जो मूवमेंट हो रहा था, in the tribal regions, the movement that was happening, it was something that was very alarming. क्योंकि इनके बीच में भी, amongst the tribal also, the message of Mahatma Gandhi and idea of Swaraj was spread. Message of Mahatma Gandhi and idea of Swaraj was spread. गुडेम हिल्स क्या हुआ? गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में. हम जिस जगह के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, द इंसिडेंट दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, जिस प्लेस के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज द गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश. इन
Gudem Hills of Andhra Pradesh. Okay, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s. A militant guerrilla movement spread in 1920s. Forest people, please understand that the forest people were into real trouble. सबसे ज्यादा ये लोग परेशान थे. किस चीज से परेशान थे? They were very much irritated by the forest laws. Colonial government has introduced फॉरेस्ट लॉज. अब ये फॉरेस्ट लॉज क्यों बनाए थे? फॉरेस्ट के ऊपर भी ये अपना कब्जा करना चाहते थे. दे वॉन्टेड टू कैप्चर ओवर फॉरेस्ट इन देयर ओन मैनर. फॉरेस्ट एरिया से दे यूज टू गेट लॉट ऑफ मटीरियल. ब्रिटिशर्स, और ये जो सामान फॉरेस्ट से ले रहे थे ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे. So they have introduced the forest laws, और ट्राइबल्स जो रहते थे फॉरेस्ट में उनको वहां से उन्होंने बाहर निकाल दिया था. They had evicted the tribals from the forest areas. Okay, and the hill people were very enraged. People, tribals were not allowed to enter forest areas. फॉरेस्ट में उनको घुसने के लिए अलाउड ही नहीं था. बाहर रहिए, बाहर रह के सारा काम कीजिए. अब द ट्राइबल्स हु वर देयर, ये जो जंगल के लोग हैं इनका तो काम ही जंगल के सामान से चलता था. देयर लाइफ वॉज बेस्ड ऑन द मटीरियल्स अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. So they have to enter the forest, and ये बहुत बुरा लग रहा था इनको. They could not take animals to the forest to graze. जानवरों को चराने के लिए ये इनको फॉरेस्ट एरियाज में दे कैन नॉट टेक. जानवरों को नहीं, एनिमल्स नहीं. इट इज लाइक द कैटल्स, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ये सारी जो है. एंड नॉट अलाउड टू कलेक्ट. खाना कैसे बनेगा? उस समय गैस तो होता ही था, तो फुएल वुड, जंगलों का ये जो लकड़ियां हैं, लकड़ी ला के घर में ये लोग खाना बनाते थे. उसके लिए भी दे हैव बीन स्टॉप्ड. फुएल वुड, एंड दे कैन नॉट टेक फ्रूट्स ऑल्सो फ्रॉम दीज जंगल्स. जंगलों के जो फ्रूट्स हैं, दे वर बार्ड फ्रॉम यूजिंग दैट ऑल्सो. वो भी उनको मना कर दिया गया कि वो जंगलों के फ्रूट्स को भी नहीं यूज कर सकते हैं. So, ये जो सारे restrictions थे, please understand all these restrictions that were there, hill people, the tribal people were very angry. This enraged the tribal people. Tribals को इससे बहुत गुस्सा चढ़ा, एंड दे वेर नॉट ओनली वेर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, ट्रेडिशनल राइट्स वेर ऑल्सो बीइंग डिनाइड. ठीक है, देयर livelihoods were affected,
and traditional rights were denied. इनकी जो ट्रेडिशनल राइट्स, ये जो जंगल वाले लोग होते हैं ना, all these jungle people, they have their jungle gods in the forest. ये जंगलों के देवी देवता की ही पूजा करते हैं, ठीक है। जंगल देवता होते हैं, जंगल देवी होती हैं, उनकी ये पूजा पाठ करते हैं. सो व्हेन दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट एरियाज, दे वर फीलिंग वेरी बैड. इसी बीच में देयर वाज वन लीडर कॉल्ड एज अल्लूरी सीताराम राजू. some leaders actually the हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशन है ना, जो थोड़ा बहुत भी मैजिकल ट्रिक्स दिखा देते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी जिनका पूजा पाठ में बहुत अच्छा चलता है, तो वो कह देते हैं इनके ऊपर तो देवी की कृपा है, गॉड्स ब्लेसिंग इज ऑन दिस पर्सन, और उस आदमी को, इंसान को भगवान बना देते हैं. सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड विद अल्लूरी सीताराम राजू. अल्लूरी Sitaram Raju claimed that he had supernatural powers. बहुत सारे पावर्स थे इसके पास. ही कुड मेक करेक्ट, अब थोड़ा बहुत क्या था, थोड़ा बहुत इनको सितारों का ज्ञान था. सो ही कैन मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, थोड़ा बहुत भविष्यवाणी कर देते थे. ही कैन मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी. Got it? And he talked of the greatness of Mahatma Gandhi. He could survive. He said he could predictions करते थे. He could also heal people. थोड़ा सा मेडिकल की भी नॉलेज थी, तो अगर किसी को चोट वोट लगी तो उसको वो सही कर देते थे. तो he was considered as the incarnation of God. अनपढ़ लोग थे ना, अंधविश्वासी थे. Okay, so he was considered as incarnation of God. भगवान का दूसरा जन्म हुआ है. But the people said that they were very blessed that he was amongst them. And Raju talked about greatness of Mahatma Gandhi. Talked about महात्मा गांधी के बारे में बड़ी अच्छी बातें कहते थे, ठीक है. ग्रेटनेस ऑफ गांधी. Mahatma Gandhi, who said, was promoting khadi, so he said that people should wear khadi. He promoted खादी, लोगों को कहा कि आप खादी पहनिए. and he also shut the liquor shops. ये जो शराब की दुकानें थी ना, ये सब चीज को उन्होंने बंद करवा दिया. and gave up drinking. He asked the people to wear khadi and gave up drinking. Of course, drinking is not a good thing, ना, किसी भी तरह से having liquor is not good. And he carried on the guerrilla movement. अब यहाँ पे it is a guerrilla movement he is carrying on. This is a contradiction to the non-violence. गुरिल्ला मूवमेंट में क्या करते थे? They attacked police stations पे अटैक करते थे. They attacked the police stations, ठीक है. Killed the British.
हो गया नॉन वायलेंस के खिलाफ। एज ए रिजल्ट बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई, बट देन राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। राजू वॉज captured and executed in 1924. इनको मार दिया गया। Such leaders, such leaders have played a very important role in creating awareness amongst the people. आपने पढ़ा होगा in class 8, you might have read about some other tribal leaders like the Birsa Munda, Santhal leader, Sidhu Kanu, Jitram Manji. All these people, all these tribals have always been contributing for the upliftment of the people. ये तो ट्राइबल्स की कहानी हो गई। अभी हम कहाँ चलेंगे? नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द हिली एरियाज। पहाड़ों की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पे स्वराज से रिलेटेड क्या हो रहा था, वहां पे नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड क्या हो रहा था। बट दिस आई शो यू इन द बुक इटसेल्फ। कम लेट्स सी। So students, just now we discussed about the tribal peasants, how they have been interpreting the message of Mahatma Gandhi, and यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, what you have to remember is children, the Gudem Hills of Andhra Pradesh, and early 1920s में it has spread. It's a form of a struggle क्योंकि Congress did not approve of these kind of violent movements. अब क्या हो रहा था ना कि that all the movements that were happening were taking a violent turn. महात्मा गांधी का विजन कुछ और था। Mahatma Gandhi had started these movements with a different idea altogether. लेकिन अभी क्या हो रहा था, ये आइडिया पूरा पलट गया था। The idea has totally changed. And another forest region that was there, colonial government ने फॉरेस्ट को क्लोज कर दिया था। ये लोगों के गुस्से का ज़्यादा कारण था। देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी बेगार। बेगार, ज़बरदस्ती आप किसी से काम करा रहे हैं, एंड रोड बिल्डिंग इज़ देयर, हिल पीपल आर रिवोल्टिंग। तो interesting figure that is there, the person who had come was सीताराम राजू। ये नाम आपको याद रखना है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, राजू हैड डन सम वर्क जिससे कि लोगों को लगता था ही इज़ जस्ट लाइक गॉड टू देम। उनके लिए अल्लूरी सीताराम राजू को लोग भगवान समझते थे। ओके, सो गांधी जी के बारे में ही हैड अ वेरी नाइस आइडिया, he had a very nice concept, people loved the way he used to talk about Gandhi. लेकिन गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे, बट इन प्रैक्टिस दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग द गांधी जी's प्रिंसिपल्स। पीपल वेर फोर्स्ड टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। इंडिया को उन्होंने कहा कि इंडिया कैन बी लिबरेटेड बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। यहाँ पे जस्ट सी द कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ तो महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, वायलेंस के लिए लोगों को उकसा दिया। तो एज अ रिजल्ट गुडेम हिल्स में लॉट ऑफ वायलेंस वॉज देयर। दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, दे कैरिड ऑन द गोरिल्ला वॉरफेयर। अब ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों को परेशान कर रही थी। अचीविंग स्वराज। सो राजू वॉज कैप्चर्ड in 1924। 1924 में इनको मार दिया गया because of his unlawful actions. Got it? Now children, today we will be completing this topic also, Swaraj in the plantations. Please understand that the people who were working in the plantations, got it, they were into big time trouble. Plantations कौन सी जगह थी जहाँ पे कि where there were, it was majorly in Assam. Working in the plantations is a very tough task, very tough.
फ्रीडम का मतलब था कि राइट टू मूव फ्रीली, हर जगह फ्रीली जा सकते हैं, इन एंड आउट ऑफ दी कन्फाइंड स्पेस, जो बची खुची जगह है, इन विच दे वेयर एनक्लोज्ड, जहाँ पे लोगों को बंद करके रखा गया है, वहाँ से ये फ्री होना चाहते थे। अब देखिए इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। नॉन कोऑपरेशन फॉर देम इज अ वेरी different concept where they wanted to move away from the plantations. That was the only thing for them, non cooperation. ठीक है, that is what we are studying, differing strands, अलग अलग लोगों का अलग अलग आइडिया था। a link was there with the village जहां से they had come. so Britishers ने क्या किया ना, they had passed the Inland Immigration Act एंड प्लांटेशन वर्कर्स को कहीं भी जाने की छूट नहीं थी। दे वेर जस्ट लाइक बॉन्डेड लेबरर्स एंड दे वेर रेयरली गिवन द परमिशन टू मूव फ्रीली। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में दे हैव हर्ड ना, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, इन्होंने क्या किया, दे डिफाइड द अथॉरिटीज एंड दे ट्राइड टू रन अवे, भागने की कोशिश करते थे ये। ओके, प्लांटेशंस को छोड़ दिया एंड दे हेडेड होम, घर की तरफ बढ़ रहे थे ये, और इनको ये लग रहा था कि गांधी राज हैज़ कम एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। सबको मतलब जहाँ जहाँ से वो आए हैं उन सारी ज़मीनों पे इनको पूरा पूरा अधिकार मिल जाएगा। इज इट सो? क्या ब्रिटिशर सच में ऐसा करेंगे? ये चीज़ सच्ची नहीं थी, लेकिन अब वही बात है ना, यू आर परसीविंग इट इन योर ओन मैनर। आप उसको अपने तरीके से अपने हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग इट इन योर ओन मैनर, यू आर थिंकिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर, दैट इज देयर। सो जब भी ये भागने की कोशिश करते थे, इनको रोक लिया जाता था, and just see whenever they were caught by the police and brutally beaten up. प्लांटेशन छोड़ के जा रहे हो, अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीना चाहते हो, आओ बताते हैं तुम्हें। Yes children, actually that was the mode they were treated. फिर इन्होंने क्या किया कि the movement that was there, it was not defined by Congress. कांग्रेस को इसके बारे में नहीं पता था कि प्लांटेशन वर्कर्स भी ऐसा चाहते हैं। प्लांटेशन वर्कर्स हैड ऑल्सो गॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, दे वर नॉट नोइंग अबाउट इट, गॉट इट। सो दे इंटरप्रेटेड, स्वराज का मतलब इनके लिए बिल्कुल अलग था। दे वर इमेजिनिंग कि एवरीबडी सफरिंग्स, ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, एंड ट्राइबल्स क्लेम्ड कि गांधी जी's नेम एंड रेज द स्लोगन्स लाइक Swatantra Bharat. They were also emotionally relating to All India agitation. All India में जो movement चल रहा था, they wanted to eagerly participate in that also. So when they acted in the name of Mahatma Gandhi, जब महात्मा गांधी जी के नाम पे इन्होंने काम किया और linked their movement to that of Congress, तो एक ऐसे movement के बारे में ये बातें कर रहे थे। They were identifying with the movement which went beyond the limits of immediate locality. खाली प्लांटेशंस की बात नहीं थी, it was spreading everywhere. हर एक लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब क्या हुआ, गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। He withdrew the movement. Yes children, very sorry state. जब मूवमेंट पीक पे होता था ना, गांधी जी यूज्ड टू विड्रॉ दीज मूवमेंट्स। लेकिन इंसिडेंट भी बहुत बुरा हुआ था, ठीक है। जस्ट सी द पीपल वेयर एजिटेटेड, इतने नाराज थे लोग, पीपल वेयर वेरी एजिटेटेड, एंग्री। चौरी चौरा में, गोरखपुर में कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था बाजार में, एंड वायलेंट क्लैश, बहुत मारपीट शुरू हो गई विद द पुलिस। ये सारी इंसिडेंट्स व्हेन दे केम टू नो, महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू दी नॉन कोऑपरेशन। ही सेड कि ना, वायलेंस के साथ तो नॉन कोऑपरेशन चल ही नहीं सकता है, वायलेंस हैज टू स्टॉप। दैट वाज हिज आइडिया। सो द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। अब आप समझ सकते हैं इंडियंस कितना
परेशान हुए होंगे, लेकिन गांधी जी है ना, अगर उसूल है तो है. नॉन वायलेंस मीन्स नॉन वायलेंस. पीपल वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. गॉट इट? सो हियर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कम्स टू एन एंड. अब एक दूसरा बड़े मूवमेंट की तैयारी हो रही थी. कौन सा मूवमेंट था, कैसे तैयारी हो रही थी, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू टिल देन.